Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to start next stanza of the poem. Listen carefully of this video. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ship and sun and love tempting them to steal for lives that sillily turn to their crammed holes from fog to endless night on their slag heap. The children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stone. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as do. Poet Stephen Spencer Spender is described. He further says that these children, these children living in the slum area have faced so many difficulties or hardship that they feel every other person's to be their enemy. For them, Shakespeare is a bad example. For them, Shakespeare is a able man, an able man. They do not find the map to be a good thing because they were never liked or loved by anyone. So they hate almost everyone. Their desire of being loved by others forces, like other forces them to steal. They live in small homes. Crammed hole means small, छोटे छोटे उनके घर है जहाँ पे वो रहते हैं. स्मॉल होल इसी के लिए कहा क्रैम्ड होल को. Homes, and they have started adjusting to it. They live in their house and they are doing the adjustment for their life. Their life is doing going towards an endless night. It means it feels that the night will never be end. This means that their future is full of dark. These children are so thin. Their body structure is very thin. One can easily see their bones. It means they are very lean and thin, and anyone can see their bones through the thin layer of their skin. Their skin is like the thin layer of our clothes, and bones beneath are visible through the skin. स्किन में उसके शरीर के नीचे दिख रहा है किस प्रकार से उनका बहुत पतला शरीर, मांस बहुत पतला, और उसमें बोन्स चमक रही है. ऐसा विजिबल जिसे कहते हैं. Thin layer of the clothes and the bones beneath are visible through the skin. These children suffer from malnutrition. They are suffering. They have been suffering so many difficulties. Main thing is poverty, निर्धनता. और दे वेयर स्पेक्टेकल्स, वो जब चश्मे जो पहनते हैं विच आर मेड ऑफ द स्टील, और दे आर चीप. द spectacles are cheap and very uncomfortable for them. Even the lenses in the spectacles are repaired. The spectacles look like stone which have been repaired with pieces of glass sticking out of them. क्या कह रहा है कि वो उनके जो चश्मे हैं, उनका जो फ्रेम है वो स्टील का है, और उन पे जो ग्लास लगे हैं ऐसा लगता है जब हम किसी पत्थर में किसी बोतल को मारते हैं और उस पत्थर पे जब वो कांच चमकता है, ऐसे ही उनके चेहरे पे वो चश्मे चमक रहे हैं, वो चश्मे दिखाई दे रहे हैं. द पोएट इज टेलिंग अबाउट दिस कंडीशन. उनकी कंडीशन को बता रहा है, इस तरीके से वो चश्मे उनके उस पर लगते हैं. Or all these children have to face so many hardship difficulties in their lives. As
these slums are getting bigger, और ये slums धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं. It means their population बढ़ रही है, और they will destroy the future of और these children, and it is very difficult for such kids of space from them. और क्या कह रहा है? They will destroy means होता है नष्ट होना. The future of, तो ये जो slums है इन बच्चों के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर, और इस प्रकार के ऐसे बच्चों के लिए बहुत कठिन हो जाता है टू एस्केप फ्रॉम देम, को इस श्रम से इस तरीके से बच सके, इस डिस्ट्रॉयनेस से बच सके. अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम देयर विंडोज, एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक catacombs, break upon till they break the town, and show the children to green fields, and make their words run azure on gold sands, and let their tongues run naked into book. The white and green leaves open history. Their whole language is the sun. अनलेस, जो पोएट यहाँ पे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम देयर विंडोज, एंड दीज विंडोज सेट दैट सेट अपॉन देयर लिव्स लाइक कैटाकॉम्स. अनलेस मीन्स यहाँ पे जो कंडीशन बता रहा है किस प्रकार से वर्ड आया एजोर. द मीनिंग ऑफ एजोर मीन्स होता है डीप ब्लू, गहरा जो नीला कहते हैं, और कैटाकॉम्ब जो होता है जो हम गुम्बदें होती हैं, टॉम्ब. द लास्ट, इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट इज डिस्क्राइबिंग, द पोएट सेज दैट द गवर्नमेंट, गवर्नर कौन है? जो सरकार का आदमी है, लिखा है इंस्पेक्टर, विजिटर. तो पोएट सेज दैट द गवर्नमेंट should take notice, should take the proper attention of the problems of the children. The government should take notice of the problems being faced by these children. The poet requests, the poet urges all the visitor, the governor, the inspector, and all common peoples and the government, urges them to change the life of these children and make the world map a reality for them. जो वहाँ पे उनके स्कूल में मैप टंगा हुआ है, वो संसार, वो मैप उनका नहीं है, वो संसार उनका नहीं है, वो इस रियलिटी, वास्तविक संसार से बहुत दूर है. उनका संसार बिल्कुल अंधकार से भरा है. फॉग एरिया है, जहाँ फॉग लगा, 24 घंटा धुंध लगा हुआ है, वहाँ ऐसा लगता है कि रात कभी ख़त्म होगी नहीं. तो रियलिटी ऑफ देम, देयर इज अ नीड टू ब्रेक द रेस्ट्रिक्शंस, कह रहे आवश्यकता है तोड़ने की जो उन पे प्रतिबंध है. देयर इज अ नीड टू ब्रेक द रेस्ट्रिक्शंस विच आर पुट ऑन देम ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण, वो जो उनके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है, जिसके तरीके जिस कारण बाहर नहीं जा सकते, उनका सब वो उस संसार से, उस डार्क एरिया से, उस श्रम से बाहर नहीं जा सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाने चाहिए. एंड पॉवर्टी कह रहा है, एंड लैक ऑफ द रिसोर्सेज, क्यों नहीं जा सकते? क्यों गरीब है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वहाँ से बाहर निकल नहीं सकते. द पोएट वांट्स द गवर्नर एंड पब्लिक टू हेल्प दीज चिल्ड्रन. द पोएट अर्जेज अस, द गवर्नर एंड द पब्लिक टू हेल्प दीज चिल्ड्रन इन अचीविंग देयर ड्रीम्स, वो भी अपने सपनों को प्राप्त कर सके, अचीव कर सकते हैं. एज दिस विल टेक देम अवे फ्रॉम फॉग, और उनको इस जो संसार में, जिस संसार में रहते हैं, फॉगी एरिया में रहते हैं, वहाँ से विल टेक देम अवे मीन्स दूर ले जाए, फ्रॉम फॉग, फॉग से कहाँ, टू अजोर, अजोर मैंने अजोर स्काई का मतलब डीप ब्लू स्काई के नीचे, वो भी एक नीले आकाश के नीचे खुली हवा में सांस ले सके, उस संसार को जो रियल वर्ल्ड है उसको देख सके. द पोएट हियर, द पोएट वांट्स टू से दैट इन दिस वे द किड्स कैन बी टेकन अवे फ्रॉम द डार्कनेस टू द देयर प्रेजेंट टू बी टू अ ब्राइट फ्यूचर. क्या कह रहा है? इन दिस वे
द चिल्ड्रन कैन बी टेकन अवे, उन बच्चों को ले जाया जा सकता है, फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ देयर प्रेजेंस टू बी, उस डार्कनेस से, उस फॉगिया से ब्राइट की ओर, उनका फ्यूचर जो ब्राइट हो सके. ही वॉन्ट्स these kids of experience and scent and the beauty of nature, as this will lead to be desire, to a desire of gaining knowledge. They will then go through the white and green leaves. They will then go जा सकते हैं through the white and green leaves. Here white leaves depicts क्या books के लिए, मतलब वो भी बाहर जाएंगे तो रिसोर्सेज जब होंगे, जब उनकी सहायता करेंगे तो स्कूल में जाएंगे, वो किताब के दर्शन करेंगे. एंड ग्रीन लीव्स को नेचर से वो क्या होंगे, वाकिफ होंगे, रूबरू होंगे. दिस विल देन रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या होगा, इन देयर प्रोग्रेस. द चिल्ड्रन विल डू देयर प्रोग्रेस एंड दे विल बी एबल टू पेंट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर देमसेल्फ, अर्थात दे कैन, दे विल बी फाइंड मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड also they can live their life like us. It is the request of the poet for us. Dear student, listen this video carefully and try your best to understand of it. Thank you.